بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چالن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز اور میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے سب سے پہلے ڈسٹرکٹ نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب میں بربادی کے مناظر، 1000 سے زائد ہلاکتیں، 8 لاکھ مویشی ہلاک، معیشت کو $10 ارب کا نقصان۔ بلوچستان میں آنے والے سیلابی پانی کا دباؤ بڑھنے کے بعد سندھ کو ایک بار پھر سیلاب کا سامنا، حکومت نے جنوبی کینال میں شگاف ڈال دیا، 60 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ۔ دریائے سندھ میں طغیانی سے زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، کئی دیہات زیر آب۔ بلوچستان میں سیلاب کے باعث قیامت خیز تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 250 تک پہنچ گئی۔ تعلیمی ادارے 3 ستمبر تک بند، کراچی، کوئٹہ، بولان اور جیکب آباد قومی شاہراہ بند۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا رابطہ بھی بحال نہ ہو سکا۔ KPK میں سیلاب سے DI خان، ٹانک، سوات، نوشہرہ اور چارسدہ میں بڑے پیمانے پر نقصانات۔ کلام میں رابطہ سڑکیں اور مکان سیلاب کے باعث صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ چارسدہ میں 1,80,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آج سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ٹیلی تھون کریں گے۔ ٹیلنٹ نیوز کپتان کی تقریب براہ راست نشر کرے گا۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے دل کھول کر امداد کریں۔ نارووال میں بھارتی جارحیت اور حالیہ بارشوں کے باعث دریائے اچ اور دریائے راوی میں طغیانی، متعدد دیہاتوں کی سینکڑوں ایکڑ دھان کی فصل تباہ، کسانوں کا انتظامیہ کی بے حسی پر احتجاج۔ خیرپور ناتھن شاہ میں بند میں شگاف پڑ گیا، کھڑی فصلیں تباہ، پورا شہر پانی میں ڈوب گیا، لوگ مدد کے منتظر، درجنوں مویشی ہلاک۔ افسوسناک حادثات، سہوان شریف میں مسافروں سے بھری ہوئی کشتی الٹ گئی، 4 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ کشتی میں 20 سے زائد افراد سوار تھے۔ دوسری جانب خیرپور میں 5 منزلہ عمارت زمین بوس، ملبے تلے دبے 15 افراد کو نکال لیا گیا۔ مسلسل بارشوں کے باعث عمارت خستہ حال ہو چکی تھی۔ رتو ڈیرو شہر میں درینہ دشمنی پر گولیاں چل گئیں، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ دوسری جانب گڑھی خدا بخش میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، ورثاء کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج۔ لاڑکانہ کے علاقے رتو ڈیرو میں گزشتہ روز سے غائب 2 بچوں کی لاشیں مل گئیں۔ 13 سالہ سعید احمد اور 12 سالہ نثار سنانی کی لاشیں برف کی بند دکان کے واٹر ٹینک سے برآمد ہوئیں۔ جاں بحق ہونے والے دونوں بچے آپس میں کزن تھے۔ لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام برپا۔ مظفر گڑھ کے ہوٹل میں مسلح ڈاکوؤں کی دن دہاڑے ڈکیتی کی کوشش، مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، 2 نوجوان شدید زخمی۔ دوسری جانب ہارون آباد کے علاقے فقیر والی میں چوری کی واردات، ڈاکو نقدی، طلائی زیورات اور گندم لے اڑے۔ جہانیہ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈکیتی کی واردات، 5 مسلح DVR لوٹ کر فرار، IT انچارج پر تشدد کیا، واقعے کا مقدمہ درج۔ شیخوپورہ گوجرانوالہ روڈ پر تیز رفتار گاڑی الٹ گئی، حادثے میں 2 افراد شدید زخمی، اسپتال منتقل۔ دوسری جانب لودھرا میں زہریلی چائے پینے سے 5 افراد کی حالت غیر، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، متاثرین میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ پہاڑی میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈاکٹرز اور عملے کی ہڑتال، آؤٹ ڈور بند، سینکڑوں مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں مسیحاؤں کے منتظر۔ ڈاکٹرز اور عملے کی غنڈہ گردی کے خلاف مریضوں کے لواحقین کا شدید احتجاج، ہسپتال انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ اور گوجرانوالہ میں بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف شہری بلبلا اٹھے، پیپلز کالونی سب ڈویژن کے باہر احتجاج، حکومت مخالف نعرے بازی، مین GT روڈ کو بلاک کر دیا گیا، لاہور سے اسلام آباد جانے والی ٹریفک معطل۔
हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 28 अमवात हो गई। मजमूई तादाद 1061 तक पहुंच गई। 9,49,000 मकानात ज़मीन बोस हो गए। 8 लाख मवेशी हलाक हो गए। 149 पुलों को नुकसान पहुंचा। 3,451 किलोमीटर सड़कें खंडर बन गईं। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ बर्बादी का मंजर। दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से डीआई खान, टांग, सवात, नौशहरा, चारसद्दा में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में 24 घंटों के दौरान बारिशों के नतीजे में होने वाले हादसात में मजीद 6 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक के बाद सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 248 तक जा पहुंची है। प्रोविजनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश और सैलाब के नतीजे में होने वाले हादसात में मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। सहमन में मुसाफिरों से भरी हुई कश्ती उलटने के वाक़ये में 4 अफराद जाँ बहक, जबकि खैरपुर में 6 मंजिला इमारत गिरने के नतीजे में कई अफराद ज़ख्मी हो गए। सहमन के गांव बिलालपुर में कश्ती उलटने से जाँ बहक होने वालों में बच्चा और ख़वातीन भी शामिल हैं। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि कश्ती पर 20 से ज़ायद अफराद सवार थे। दूसरी जानिब खैरपुर में मुसलसल बारिशों के बाइस 5 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें ज़मीन बोस हो गईं। रत्तू डेरो शहर में दिरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया, जबकि गढ़ी खुदा बख्श बहट्टू में डकैती के दौरान फायरिंग के नतीजे में नौजवान जाँ बहक हो गया। वरुसा का लाश सड़क पर रखकर धरना। रत्तो डेरो के हसनपुर मोहल्ला दरीना मामले पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 1 शख्स जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों में जुबैर जलबानी और मोहम्मद हनीफ बरोही शामिल हैं। लाड़काना के इलाके रत्तो डेरो में गुज़श्ता रोज से लापता होने वाले 2 बच्चों की लाश बर्फ शॉप की वाटर टैंक से मिल गए। शहर के मोहल्ला शहदाद कोट नाका से गुज़श्ता रोज से लापता होने वाले 2 बच्चों 13 साला सईद अहमद और 12 साला निसार सुनानी को वरिसा की जानिब से तलाश करने पर दोनों बच्चों की नाशें बंद पड़ी हुई बर्फ शॉप की वाटर टैंक से बरामद हुई। जाँ बहक होने वाले दोनों बच्चे आपस में कज़न थे। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया में मुबैना डकैती की वारदात हुई है। 5 मुसल्लह अफराद गन पॉइंट पर 39,000 रुपए नकदी, 9 लैपटॉप, डीवीआर लूट कर फरार हो गए। आईटी इंचार्ज पर तशद्दुद और मुसल्लह अफराद के दाखिले की फुटेज टैलेंट न्यूज़ ने हासिल कर ली। जहानिया पुलिस ने मामूली दफात का मुकदमा दर्ज कर लिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया में मुबैना डकैती का वाक़या पेश आया, जिसमें 5 मुसल्लह डाकू गन पॉइंट पर अस्पताल का रिकॉर्ड, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, डीवीआर, 39,000 रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गए। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की आउटडोर बंद करके हड़ताल। दूर दराज के इलाकों से आने वाले सैकड़ों मरीज जिंदगी मौत की कशमकश में मसीहाओं के मुंतजर। डॉक्टर्स और अमले की गुंडागर्दी के खिलाफ मरीजों के लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया मुर्दाबाद के नारे। विहाड़ी चंद रोज कबल निजी अस्पताल में अमले की गफलत के बायस खातून समेत 2 बच्चों के जाँ बहक होने पर डॉक्टर नासिर लतीफ़ और डॉक्टर जरीन फातिमा समेत दीगर अमले को पुलिस थाना सिटी ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टर्स और अमला बुरा मान गए। कबीरवाला के निजी अस्पताल में लेडी डॉक्टर की ऑपरेशन में मुबैना गफलत बरतने पर मरीजा की हालत तशवीशनाक हो गई। लेडी डॉक्टर फरत जमील के मुबैना लापरवाही से डिलीवरी ऑपरेशन के बाद मरीजा की हालत तशवीशनाक हो गई। 6 दिन गुजर गए, मरीजा की हालत ना संभल सकी। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल शाहिद फरीद की ज़र सदारत जिला भर के मुखैर हजरात सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आ गए। मुखैर हजरात की जानिब से आटा, घी, चीनी, नमक, मिर्च और दालों पर मुश्तमिल फूड और पैम्पर्स, खजूरों, कपड़ों और जूतों के 3 ट्रक राजनपुर और डेरा गाजी खान की ज़िले इंतज़ामिया के जरिए ज़्यादा तबाही के शिकार इलाकों में तकसीम किए जा चुके हैं। बुरेवाला में भी मरकजी अंजुमन ताजरान बुरेवाला की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फंड रेजिंग कैंप लगाया गया, जिसमें सैलाब मुतासरीन के लिए राशन, कपड़े, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया इकट्ठी की जा रही हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान बुरेवाला की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फंड रेजिंग कैंप लगाया गया, जिसमें सैलाब मुतासरीन के लिए राशन, कपड़े, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया इकट्ठी की जा रही हैं। नारोवाल में भारती जारहियत और हालिया बारिशों की वजह से दरियाए ऊज और दरियाए रावी में तुग़यानी से मुतअद्दिद देहातों की सैकड़ों एकड़
धान की फसल तबाह हो चुकी है। ज़िले इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि इंतज़ामिया की बेहिसी पर किसान सरापा एहतजाज है। भारत की जानिब से कभी दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक पानी का रेला छोड़ने की इत्तला और कभी दरियाए उच्च बैराज से पानी छोड़ने की अलार्मिंग ने सरहदी इलाकों बाहरवाल में मीरपुर जलाला गोपाल चक चंधर घरोटा समेत दर्जनों देहात के सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर लगी धान की फसल मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो गई है। उधर कसूर के इलाके सराय मुगल में एसएचओ थाना सराय मुगल नसरुल्ला भट्टी की जेरे निगरानी चौकी सरसिंह चौकी हल्ला की मुश्तरका कार्रवाई इश्तियाक उर्फ बबली सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। 2,10,000 रुपए नकदी, 8 अदद मोटरसाइकिल, 3 पिस्टल और 1 राइफल और मुतादिद गोलियां बरामद हुई। रिपोर्ट देखिए चौधरी काशिफ खान की। एसएचओ थाना सराय मुगल नसरुल्ला भट्टी की ज़ेरे निगरानी सुरसिंह चौकी इंचार्ज राना मोहम्मद अशरफ, हल्ला चौकी इंचार्ज नासर अली आसी की पुलिस टीम के हमरा मुश्तरका कामयाब कार्रवाई। दर्जनों वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार करके लाखों रुपए की नकदी, मोटरसाइकिलें और असला बरामद कर लिया। एसएचओ थाना सराय मुगल ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सराय मुगल व गिरदो नवाह के इलाकों में चोरी और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस इश्तियाक उर्फ बिल्ली सरगना को 2 साथियों समेत गिरफ्तार करके 2,10,000 रुपए नकदी, 8 अदद मोटरसाइकिलें, 3 पिस्टल, 1 राइफल, मुतादिद गोलियां बरामद कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, मजीद इंकशाफ की तवक्को है। कैमरा टीम के साथ चौधरी काशिफ, टैलेंट न्यूज़, कसूर। सांगला हिल में तंजीम अली वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम चीफ ऑफिसर बल्दिया ने मुकामी कब्रस्तान में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मकामी फलाही तंजीम अली वेलफेयर के सरपरस्त आला कर्नल रिटायर्ड अमानत अली के ज़ेरे इंतज़ाम मकामी जाफर साई वाले कब्रिस्तान में चीफ ऑफिसर बल्दिया ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा ऐलान कर दिया। ननकाना साहब में समाजी तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा के तहत जज्बा डिस्ट्रिक्ट फोरम के मेंबरान की खवातीन पर तशद्दुद रोकने वाले इदारों के जिम्मेदारान के साथ नशिस्त का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट की सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राय रुबीना आसिफ खरल ने की, जबकि नशस्त में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद नासिर चद्दर समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।